Hi there, this is Ubaidullah, and in this video today I'm going to explain to you the remaining part of the chapter number 5, that is the 100 dresses part 1. In this video we are going to discuss the text that falls under the third oral comprehension check. So let's get it started. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problem absent-mindedly, 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. To say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. And this paragraph says that Maddie or Madeline, she her self-conscience is actually uh, making her feel guilty, and it is not that that is guilt only. She is also worried that she might be a target sometime soon. So she had a confusion in her mind whether to say Peggy to stop, or she is also worried that if she says that, you know, she can become a target sooner than she expect. So the paragraph says कि भले ही वो आज स्कूल आने के लिए लेट हो गए थे, मैडी खुश थी. मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. वेंडा का उसको मजाक नहीं बनाना पड़ा था, या जब उसका मजाक बन रहा था वेंडा का तो वो वहां नहीं थी. उसको ये सोचकर खुशी थी भले ही वो स्कूल लेट हो गई थी. स्कूल में बैठे हुए वो सोच रही थी दैट काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती. शी हैड द नर्व, शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, कि वो पैगी को लिख देती कि तुम वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दो. नोट लिखना क्यों? क्योंकि उसको ये यकीन था शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि वो पैगी के मुंह पर ये चीज़ कह सके. उसको यकीन था कि वो नहीं कह पाएगी, वो नहीं कह पाएगी पैगी से कि अब ये काम बंद करो, है ना. So she was doing her arithmetic problems, she was solving arithmetic problems, and when she finished working on arithmetic, she started to write a note. उसने सोचा कि चलो अब नोट लिखते हैं. उसने शुरुआत की उसकी. She started to write the note, but she did not finish it. In the beginning itself, she shuddered, thinking that she might be a target. She was so afraid of being Wenda that she stopped writing. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. उसने इमेजिन किया कि इस नोट को देने के बाद क्या होगा, कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे और पैगी और दूसरी गर्ल्स के लिए मैडी जो है एक नया टारगेट बन जाएगी. और जिस तरह से वेंडा से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने शूज़ हैं, हो सकता है कि मैडी से भी यही चीज़ पूछी जाए. पैगी उससे पूछे, पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. वो ड्रेस जो उसने पहन रखा है, वो ड्रेस उसको कहाँ से मिला. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड tried to disguise with new trimmings so no one in the room 13 would recognize it. उसने ये सोचा अपने दिमाग में कि जिस तरह से वेंडा से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, ये सोच करके उसके पास कोई ड्रेस है ही नहीं. पैगी से भी मैगी से भी पूछा जा सकता है कि तुम जो ड्रेस पहनी हुई हो वो तुम्हें कहाँ से मिला. और मैडी को ना चाहते हुए भी उसको यही आंसर देना पड़ेगा कि ये तुम्हारी ड्रेस है, मेरी मदर ने इसको थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है, इधर उधर से थोड़ा सा बराबर कर दिया है ना, ताकि ये नया ड्रेस लगे.
है ना, कुछ लेसेस वगैरह लगा दी हैं, कुछ 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 ऐसी चीज़ कर दी है उसके ऊपर जो थोड़ा सा उसको चेंज कर देता है, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने पैगी को पहले ये ड्रेस पहने हुए देखा है वो मैडी को देख के ये ना कहें कि ये ड्रेस तुमने पैगी का पहन रखा है। पर जब अगर पैगी पूछती है उससे तो मैडी को बताना ही पड़ेगा कि ये ड्रेस तो तुम्हारा ही है, और फिर उसकी वजह से सब उसकी पावर्टी का मजाक उड़ाएंगे। Now we see that Maddie is changing her mind and she was confused whether to write or not. She was fearful that she may become another target for Peggy and other girls. So Maddie thought that let Peggy decide according to her will, according to her ease, when she is going to stop having fun with Wenda. Okay. And she decided that she will not write any letter, any note to Peggy saying that stop doing this with Wanda. So she thought if only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, तो ये सिर्फ और सिर्फ पैगी का ही फैसला होगा कि कब उसको वेंडा का मजाक उड़ाना बंद करना है, कोई उसको कह नहीं सकता ही है। फिर उसने और भी सोचा, ओ वेल व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, अगर मैं कुछ इस तरह से करती भी हूँ तो क्या इसका फर्क क्या पड़ेगा, है ना? मैं एक और टारगेट बन जाऊंगी, वेंडा तो वही है, वेंडा का भी मजाक उड़ता रहेगा और मेरा भी मजाक उड़ाने लगेंगे लोग। मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर as though to push the uncomfortable thoughts away. उसने अपने बालों में हाथ फेरा कुछ इस तरह से कि जैसे वो अपने बालों में से उन थॉट्स को, अपने सर में से उन थॉट्स को निकाल के झटकना चाहती हो। वो चाहती हो कि ये थॉट्स मेरे दिमाग से निकल जाएं, कि मैं उसको एक नोट लिखूं। वो जो 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 थॉट उसको बीच अंदर से खाए जा रही है, उस थॉट को वो निकाल देना चाहती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। Slowly, Mary tore into bits the note she had started. जो नोट लिखना उसने शुरू किया था उसको धीरे धीरे उसने फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। And she started to think she was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. इस रूम में सबसे ज़्यादा जिस गर्ल को पसंद किया जाता है वो है पैगी, और पैगी जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करती है वो है मैडी। ओके, तो वो जिसको सब पसंद करते हैं वो कैसे गलत हो सकती है, ऐसा सोचती है मैडी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग। उसने ऐसा सोचा कि जो इतना पसंद किया जाता है वो ऐसा कोई काम कैसे करेगा जो कि बिल्कुल गलत हो। तो उसने सोचा कि पैगी ऐसा कोई गलत काम करेगी नहीं, पर वो ओवर रिएक्ट कर रही है, वो ज़्यादा सोच रही है कुछ एक मामले के, एक मसले को लेकर। और जो वेंडा के साथ जो हो रहा है वो इतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा वो समझने लगी है। वेंडा के बारे में सोचते हुए मैडी अपने दिमाग में ये ख्याल लाती है कि वो एक आम सी लड़की है। शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन्स हाइट्स, जो एक दूर के इलाके में रहती है जिसका नाम बोगिन्स हाइट्स है। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड में वो अकेली है। ये वो बातें कंपैरिजन में सोच रही है असल में पैगी के, कि पैगी जो है वो एक पॉपुलर गर्ल है, उसके मुकाबले में वेंडा है जो एक आम सी लड़की है ना। पैगी एक ऐसे इलाके से आती है जो कि अच्छा इलाका है ना, उसकी फ्रेंड भी है। और वेंडा कहाँ से आती है, वो एक दूर के इलाके से आती है जिसका नाम बोगिन साइट है जो अंडर डेवलप्ड है ना? फिर वो ये भी सोचती है कि वेंडा अकेली रहती है जबकि पैगी जो है वो दोस्तों में घिरी रहती है ना। पैगी खूब बात करती है जबकि वेंडा कभी कभी बोलती है, और वो कब बोलती है जब उससे 100 ड्रेसेस के बारे में बात की जाती है। द ओनली टाइम शी टॉक्ड अबाउट इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। स्कूल यार्ड में जब इसके बारे में हम उसके ड्रेसेस के बारे में हम बात करते हैं तभी वो कुछ बोलती है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को याद आया कि किस तरह से वो अपने एक ड्रेस के बारे में उसको बता रही थी कि वो पेल ब्लू कलर का है ना, कुछ स्ट्रीमिंग्स है। शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद द रेड सैश। सैश उसको कहते हैं जो कि आप देखते होंगे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वगैरह का जो जो अवार्ड किया जाता है उनको, जो
रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसमें उनको एक रिबन सा पहनाया जाता है। वो जो रिबन जिस तरह से होता है उस तरह से अगर हम कोई कपड़ा अपने ड्रेस पे लगाते हैं तो उसको सैश कहा जाता है। तो दूसरा ड्रेस भी था जिसके बारे में उसको याद आ रहा था, और जब उसने उसके बारे में लोगों को बताया, गर्ल्स को बताया, तो गर्ल्स ने दिखावटी तारीफ करने के अंदाज में उससे कहा कि उस ड्रेस को पहन कर तो तुम एकदम बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगती होगी, जो कि ग्रीन होता है। तो उसको वो सब बातें भी याद आ रही थी, और उसको ये भी याद आ रहा था कि वो कितनी सिंपल सी गर्ल है ना। तो अगर मुझे इन दोनों में चूज करना हो किसी को, वंडा या पैगी में से, तो डेफिनेटली मैं पैगी को चूज करूंगी। वो मेरी फ्रेंड है, वो पॉपुलर है ना। वो उसके आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको ऐसा बनाती हैं कि मुझे वंडा के बजाय उसी को चूज करना चाहिए। Another thought came into her mind when she was thinking about Wanda and the the fun game, the 100 dresses. She thought about the drawing and coloring contest. So she was wondering who is going to win that contest. Thinking about Wenda and her dress, 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा, ये जहन में उसके अचानक आया जब वो वेंडा और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी। गर्ल्स के लिए, फॉर गर्ल्स, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। तो बॉयज को मोटर बोट्स बनाना थी और गर्ल्स को ड्रेसेस की डिजाइनिंग करना थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। आमतौर से यही ख्याल था सबका कि पैगी जो है वो गर्ल्स का मेडल पैगी को ही मिलेगा। Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought. सब लोगों को यही लगता था कि इस रूम में सबसे बेहतर, रूम नंबर 13 में सबसे बेहतर कोई ड्रॉ कर सकता है, तो दैट इज पैगी। सो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट no one but Peggy will win this contest. But what Peggy used to do for winning, she could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वो क्या करती थी, वो किसी मैगजीन से कोई पिक्चर कॉपी कर लेती थी या किसी फिल्म स्टार का जो चेहरा था वो ट्रेस कर लेती थी, ताकि लोग देख कर ही बता सकें कि ये किसका तुमने चेहरा ट्रेस किया है या ड्रॉ किया है, जिसको लोग ये समझते थे कि इसकी ड्राइंग है, पर असल में वो उसको कहीं से ड्रॉ करके, उसको कहीं से ट्रेस करके ला देती। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैगी को यकीन था मैडी को कि पैगी ही जीतेगी। Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they would know. तभी उनको पता चलेगा फाइनली कि कौन जीता। लेकिन उसको फिर भी यकीन था कि पैगी ही जीतेगी, क्योंकि अभी तक वही जीतती आई है। सबका यही मानना है कि वो सबसे अच्छी ड्राइंग करती है। आमतौर से वो किसी मैगजीन से ये कोई पिक्चर या किसी फिल्म स्टार का फोटो वगैरह जो है वो ट्रेस करके उसकी ड्राइंग करके दे देती है। तो ये उसको पॉपुलर बनाता है कि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। The next day it was drizzling. Drizzling means light rain. हाँ, तो रेन का ही दूसरा नाम है, लेकिन जब हम बहुत ही लाइट रेन होती है जिसमें बारिश हो भी रही होती है पर हम बहुत ज़्यादा भीगते भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। पैगी की अम्ब्रेला थी जिसके नीचे मैडी और पैगी दोनों तेज तेज स्कूल जा रहे थे। वो क्यों तेज तेज जा रहे थे? बिकॉज टुडे वॉज द डे when the result of the contest was to be announced. So here the thing to be noticed is that this is the umbrella that 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 is of Peggy's, and they are walking under the umbrella. So it happens sometimes that we when we find people around us who have more money, who have more things than us, we started to side with them even though they are wrong.
दैट इज what happened with मैडी, कि वो देखती है कि पैगी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके पास पैसा है, तो वो पैगी की गलती को भी गलती नहीं मान रही है, और वेंडा के ऊपर जो कुछ जो परेशानियां हैं, उसकी जो तकलीफें हैं, उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wenda Petnowski on the corner of Oliver Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. तो मैडी सोचती है कि आज तो वो लेट नहीं हो सकते, आज उन दोनों में से कोई भी वेंडा का इंतज़ार नहीं करने वाला है. वेंडा का आमतौर से वो इंतज़ार करते थे ओलिवर स्ट्रीट पर, एक कॉर्नर में खड़े हो जाते थे, जो कि उस रोड से मिलता था जहाँ से वेंडा आती थी. वेंडा आती थी बोगिस हाइट से, जो कि रेल रोड ट्रैक के पास है, पहाड़ियों की तरफ, और उस उस रास्ते से वो बहुत दूर पड़ता था, और वहाँ से वो आया करती थी. Anyway, they were not taking chances on being late today. कुछ भी हो, आज वो लेट नहीं होने वाले थे वेंडा की वजह से, क्योंकि ये दिन इम्पोर्टेंट था. ये दिन इम्पोर्टेंट था मतलब वेंडा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी इन लोगों के लिए कि वो उसके लिए आज फिर लेट होते. Both of them are talking about the result that will be announced today, about the context, and Peggy is asking Maddie कि whether or not she will win. So she's actually starting the conversation with a different question. Do you think Miss Mason will announce the winners today? कि मिस मेसन आज रिजल्ट अनाउंस करेंगी? तो पैगी कहती है कि आई होप सो, मुझे ऐसा ही लगता है. द मिनट वी गेट इन, हम जैसे ही क्लास में जाएंगे, मुझे उम्मीद है वैसे ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा. और वो ऐड करती है, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, कि जाहिर है तुम ही जीतोगी, देयर इज नो वन एल्स हु कैन विन द कॉन्टेस्ट. और जिसके जवाब में मतलब यही बात थी जो पैगी सुनना चाहती थी, तो वो ईगरली कहती है, होप सो, मुझे भी ऐसी उम्मीद है. बट द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट. वो जैसे ही क्लास में घुसे, उनके कदम जो थे वो रुक गए. एंड गेस्ट, उन्होंने, उनकी नज़र एक जगह पर टिक गई जैसे, और उन्होंने एक आह भरी. देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी ledge एंड विंडो sill. What is ledge? Ledge is these kind of places where we can put something. It can be, the width can be more than you can see here in the picture. And windowsill is the extra area that you see at the window where you can put something on it. So this is called windowsill. So they saw that there were drawings all over the room. जहाँ कहीं पे भी ड्राइंग रखने की जगह थी, वहाँ पर एक ड्राइंग जरूर रखी हुई थी. ये उससे बहुत ज़्यादा था जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था. Dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheet of wrapping papers. There must have been 100 of them, all lined up. सब लाइन से लगे हुए थे, कम से कम 100 तो ज़रूर होंगे. ये सब रैपिंग पेपर की जो बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, उसके ऊपर ड्रॉ किए गए थे. उनके डिज़ाइंस बहुत ही खूबसूरत थे, जो बहुत ही महंगे डिज़ाइन जैसे रखते हैं उस तरह के थे. बहुत ही ब्राइट कलर्स थे उसके, और बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी वो ड्राइंग्स. दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट. ये उनको लग रहा था कि ये डिज़ाइन तो कॉन्टेस्ट की ही होंगी, जो कॉन्टेस्ट में स्टूडेंट ने सबमिट कराई हैं. दे वर. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली. उन पेंटिंग्स को, उन ड्राइंग्स को सराहते हुए सब वहीं उन्हीं के पास ही खड़े हुए थे. सब उन्हीं की तारीफ कर रहे थे. कुछ लड़के थे जो उसको देख देख कर सीटियाँ बजा रहे थे, या कुछ बातें आपस में कान में इधर उधर कुछ बातें कर रहे थे. पर सब बातें कर रहे थे उन्हीं ड्राइंग्स की, जो कि उन ब्राइट कलर्स में और लाइविश डिज़ाइंस में वहाँ पर हर लेज और विंडो सिल पे रखी हुई थी. और जैसा कि मैडी ने कहा था कि वो जैसे ही क्लास में पहुंचेंगे विनर की अनाउंसमेंट हो जाएगी, वैसा ही हुआ. मिस मैसन ने जब देखा क्लास असेंबल हो गया है, तो उन्होंने विनर्स का अनाउंसमेंट किया कि विनर्स कौन हैं. जैक बैगल्स का नाम उन्होंने लिया कि बॉयज़ में इनका डिज़ाइन जो है मोटर बोट का, वो सबसे अच्छा डिज़ाइन है. रूम नंबर 12 में उसके एग्जीबिशन के लिए
लगाया गया है और दूसरे बॉयज के स्केचेस भी वहीं रखे गए हैं, ये उन्होंने बताया। जैक बेगल्स had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. As for the girls, जहाँ तक गर्ल्स की बात रही, she said, although just one or two sketches were submitted by most, इसका मतलब है कि एक सबमिट करना ही जरूरी नहीं था, more than one could also be submitted. तो मिस मैसन कहती हैं कि गर्ल्स में से ज्यादातर ने एक या दो ही सबमिट किए हैं. One girl, and room 13 should be proud of her. This is extra sentence that we can remove it. It won't make any difference to the meaning. One girl, और उस लड़की पर जिसने सबमिट किए हैं उसके ऊपर रूम नंबर 13 को फख्र होना चाहिए. दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन. इसने 100 डिजाइन जो थे वो ड्रॉ किए. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. सब के सब डिफरेंट हैं, कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है और सब बहुत खूबसूरत हैं. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस का तो ये कहना है, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, कि उसमें से किसी एक को भी अगर हम चुन लें तो it has the chance to win over all the other drawings. I'm very happy to say that Wanda Petnosky is the winner of the girls medal, कि girls का medal जो है वो Wanda Petnosky को जा रहा है. This is completely unexpected of what Wanda and Peggy was thinking. So the winner was announced, and it was not Peggy, but it was Wanda Petnosky, who drew 100 designs, and all were different, all were beautiful, and according to the judges, each one of them was worthy enough to win the prize. Miss Mason further says that unfortunately Wanda has been absent from school for some days. Remember, the third day, the uh, the girls who started making fun of her uh, found out that Wanda was not coming. When they found out, when they got late because of Wanda, they were waiting for Wanda to come, and they would have some fun going with her to the school. So this was the fourth day when the result was announced. Unfortunately, ma'am says Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. वो शाबाशी, वो तालियां जो उसके लिए बजाई हैं आपने, उनको रिसीव करने के लिए वो उसको मिले, उसके लिए वो यहाँ पर अभी है नहीं. अनफॉर्चुनेटली कई दिनों से वो एब्सेंट है. लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो. उम्मीद करते हैं कि वो कल वापस आ जाएगी. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. उसकी जो बेहतरीन कलर की जो ब्यूटीफुल ड्राइंग्स उसने बनाई हैं उनको आप देखिए. और फाइल अराउंड का मतलब होता है कि एक लाइन बना के इधर उधर घूमना, मतलब लाइन का सीधा ना चलना, वो इधर उधर जाए, है ना. तो एक लाइन से आप लोग बारी बारी उन ड्राइंग्स को देखिए, रूम में घूमिए और उन ड्राइंग्स को ऑब्जर्व कीजिए कि वो कितनी अच्छी बनाई गई हैं. The children burst into applause. बच्चे जो थे वो खुशी से चहकने लगे, उनकी आवाज़ जो थी उनकी खुशी की, उनके खुश होने की वो आने लगी. And even the boys who were not interested in the paintings, in the drawing, they were also making some noise. है ना, they put their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in dresses. वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो उन खूबसूरत पेंटिंग्स को देख के सीटियाँ बजा रहे थे. लुक पैग, मैडी ने कहा पैगी के कान में, दैट्स द ब्लू वन she told us about. Isn't it beautiful? ये वही वाला है ना, ब्लू वन जिसके बारे में उसने बताया था. और वो देखो ग्रीन वन जिसके बारे में उसने कहा था, वो जंगल ग्रीन जिसको सुन के गर्ल्स ने कहा था कि तुम उसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगती होगी. वो ड्रेसेस जो थे वो मैडी को याद आ रहे थे कि किस तरह से वो अपने ड्रेसेस के बारे में बताती थी और हम उसका मजाक उड़ाते थे. ये रहे वो ड्रेसेस जिनके बारे में वो बात करती थी और उनको देख कर कह रही है, Isn't it beautiful? ये खूबसूरत नहीं लग रहा है तुम्हें? Boy, and I thought I could draw. पैगी कहती है कि ये सब तो बहुत खूबसूरत हैं और मुझे लगता था कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ. ड्राइंग तो असल में ये है.
this was the end of this chapter, and this is it in this video. This was the end of chapter number 5, part 1 of the 100 dresses. I hope you liked the video. Thank you very much everyone for watching.